Hello students, this is Ved and we are going to discuss physics portion of this paper. So student, first of all, if you haven't attempted the GTSC paper, then you can attempt the session in the next slot and you'll get the link in the description. And one more point, student, there will be a workshop on this coming Monday, so don't forget to join that workshop. So let's start now. So student, you can see here the first question, the root mean square value of the sawtooth curve shown in the given figure. So ये voltage time का relation given है. Okay, so this is basically VT graph is given here and we have to find out the RMS value of this graph. So first of all, we know that if we talk about the VRMS square, that is equal to what? Integration of V dt divided by integration of dt. Okay, so guys, see what is the if you talk about the coordinate of this point, so that is equal to what? I can say that 0 comma minus 6. Okay, and what about this one? Let's say the time period of this wave, this pulse is t, so this will be equal to what? T comma 6. Okay, so we have 2 points, so we can easily get the equation of this wave by using this one, you know, y minus y1 is equal to m into x2 minus x1. So let's say here y is v, so v minus v1 means, suppose let's say minus 6, so this is plus 6, and m is what? Y2 minus y1, so 6 plus 6 divided by t minus 0, okay, into t minus x1 is 0. So guys, this is going to give you the equation of this wave. Okay, equation of this wave. So let's say here we are getting here 6, this is 2t by t minus 2. Okay, this is the equation of this wave. So guys, now what you have to do, just put here, this is v square, not v. So guys, what you have to do, vrms square is equal to integration of v dt divided by integration of dt. So guys, just to use that equation, you'll get the final answer by doing calculation. So here v is what? 6 2t divided by t minus 2 whole square dt divided by capital T. Okay, and integrated from 0 to t, you'll get the final answer. You'll get the final answer, and that will be equal to option D. Okay, so that will be equal to root under, I think root under 12. Yeah, because rest of the part is calculation, you can easily do the calculation. Now move on to the next part. Let us discuss question number 2 here. A man of height h, you can see, let's say that the height of this man is h and stands in front of a plane mirror. Water has been filled up to a height 3h by 4. So let's say this height is 3h by 4. So I think if you talk about this height, so I think this is h by 4. Now the next part, the man can just see his foot in the mirror placed parallel in front of him. So guys, what is the refractive index of the water? So guys, first of all, ray is coming from the bottom of his leg. Okay, and see, this is going, this is coming from his leg now. Okay, and so this is now this is going in this direction. So student, basically here refraction is taking place. So let's say, let's take this angle as a theta1 and this angle as a theta2. So guys, what we have to do, just simply use Snell's law at point A. Let's take here refractive index mu1 and here mu2. So I can say that mu1 sine theta1 is equal to mu2 sine theta2. Refractive index of air is 1 now. So this is simply sine theta1 is equal to mu2 by sine theta2. So guys, our next target here is to get the value of sine theta1 and sine theta2. So guys, this is very simple. Suppose if we talk about this triangle, if this angle is theta1, this height is h by 4, and you know this is what? This is h. So you, from this you can easily get the value of sine theta1. Okay, p upon h. Let's say this is h. So this is h by 4 divided by h. Similarly, if you talk about the second triangle, so this is what? This is, you can say that 3h by 4. This length is h here, and let's say take this angle is theta2 and this is h dash. So sine theta2 is what? That is equal to 3h by 4 divided by h dash. By Pythagoras, find out the value of h and h dash, put here, you'll get the value of sine theta1 and sine theta2. After putting the value of sine theta1 and sine theta2, you'll get the refractive index of the refractive index of this water. Okay, and that will be equal to 5 divided by 3 root 17. So here the correct answer will be option B here. Okay, now move on to the question number 3. So student, if we talk about the question number 3 here, so here you can see, let MP is the mass of the proton and Mn the mass of the neutron. And guys, M1 is the mass of the nucleus. So student, first of all, if we talk about the mass defect, guys, if we talk about the mass defect of this one,
nickel. So guys, you know, mass defect is basically equal to what? Total mass of the individual particles, okay, minus mass of the nucleus. So in case of nickel, 10 mass of 10 proton plus mass of 10 neutron, this will be the mass of the nucleus. Now if we talk about the if we individually calculate the masses of the particles which is available inside of the nucleus of nickel, minus mass of the nucleus, that is m1. So similarly, mass defect of, if we talk about this calcium, so that here you can say 20 protons. Now I can say that 20 protons and 20 neutrons. So I think this is equals to 20 MP plus 20 Mn, okay, and minus M2. This would be the mass defect of calcium. And guys, here you can see this one is heavy. Mass of the mass of this nucleus, mass of calcium nucleus is more than that of the mass of the nickel. So this one is heavy, and guys, more mass of nucleus, more will be the mass defect. So we can say that this 20 MP plus 20 Mn minus M2 is greater than mass defect of nickel. So that is 10 MP plus 10 Mn minus M1. So I think we can take this 2 common here. So this is 10 MP. 10 MP plus 10 Mn minus M2 greater than this one is what? 10 MP plus 10 Mn minus M1. So guys, rest of the part is calculation. So we can see that what we'll get here. So student, this is very simple. Now take this one on the left side. So you'll get here minus M2 greater than you'll get 10 MP plus 10 Mn minus 2 10 MP plus 10 Mn, okay, minus M1. So guys, rest of the part is calculation, and you know that you can say that after solving you'll get here M2 is basically less than 2 times of M1. Okay, after solving, you'll get here M2 is less than that of what? M2 is less than that of 2 times of M1. Okay, this is very simple. See here, let me take this one. If you take this one on the right side, you'll get M1 minus M2. M1 minus M2 greater than this is minus 10 of MP, minus of 10 of MP plus 10 of Mn. So guys, if you want to remove this negative sign, just reverse the direction of this symbol. So guys, now this is equals to M2 minus M1, and that is less than 10 MP plus 10 Mn. Okay, so here M2 minus M1 is less than that of this. So student, now what we can do here, so just say that this M2 is greater than M1 plus 10 MP plus 10 Mn. So just replace this by M1. So M2 is greater than 2 times of M1. Okay, here M2 is approximately this M2 is, just a second, M2 is, okay, just a second guys, yeah, this will be in this direction, no? Okay, this will be in this direction guys. Just a second, let me erase it, this, just a second. Yeah, fine. So here guys, this is equals to basically M2 minus M1. Okay, M2 minus M1 less than 10 MP plus 10 Mn. So this will be in this direction. Okay, yeah, this will be in this direction. So M2 is less than that of 2 times of M1. So here the correct answer is option C. Okay, now guys, move on to the next question. See here, ABCD is a square where each side is a uniform wire of resistance 1 ohm. A point E lies. So first of all guys, we have given here a wire, na? We are given here a wire and each side having resistance 1 ohm. Okay, let's say that. Now see here, a point E lies on the CD such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE and the constant potential difference is applied across A and C, then B and E are equipotential. So guys, so let's say that this is E point. Let's say that this is E point and we are connecting here a 1 ohm resistance here. This is 1 ohm, this is 1 ohm, and this is 1 ohm. So student, if we talk about the this portion, let's say here resistance is X ohm, and so the remaining resistance here will be what? 1 minus X ohm. Okay, because student, resistance of this entire portion is 1 ohm, na? And if we are saying that the length of this portion is X. Okay, so let's say resistance for this side is X ohm, and here resistance will be 1 minus X ohm. Okay, so guys, now this was the point A, na? Ye B ho gaya, ye C ho gaya, ye D ho gaya, and this one is what? E. Now after that student, you can see this one and this one both are connected in series.
Okay, both are connected in series, and after that they are also connected in parallel with this. Together they are in series, so this is 1 minus x plus 1, so this is 2 minus x, and this one is in parallel with this 1 ohm. Okay, so I can say that equivalent resistance here is 2 minus x into 1 divided by 3 minus x. Okay, by calculating, because this 2 minus x is in parallel with 1 ohm. Now here this one, okay, and this, and let's say that, guys, now this is A point, this is A point, this is B, this is E, na, and this one is C. Okay, and guys, we are saying that we are getting the null point between B and E, because we are saying that B and E are at equipotential. So when you will connect here the galvanometer, na, then that is going to give you the zero deflection, because the potential of B point and E point is same. So now it's looking like now it's looking like what? It's looking like, guys, let me hide my video first. Guys, it's looking like a Wheatstone bridge, na? So and this one is showing null deflection. So this is balanced Wheatstone bridge. So if you want to calculate that total resistance between the point A and C, so what you have to do, because if it is balanced, so now cross multiply, this is C, cross multiply, so I can say that 1 into 2 minus x divided by 3 minus x is equal to 1 into 1. So guys, because this is balanced, this is balanced Wheatstone bridge. So guys, from this you will get the equation of x. Okay, and you can easily calculate the value of x, by doing the calculation 2 minus x. Just a second. Yeah, 2 minus x into 2 minus x divided by 3 minus x. And I think this is equal to x. Na, resistance of this portion is x. Na, yeah, this is x. This is x, so this will be equal to x, guys. Okay, there was a calculation mistake. So from this you can easily calculate the value of x. Okay, and I think you will get x is equal to almost, I think, 2 minus root 2 something. So you can cross check. After that, student, you can see several ratio is given here as ratio of CE by D. So just find out the ratio of CE divided by E by D, because if you talk about the ratio of CE, so that is equal to what? That is equal to x. And what about the ratio of ED? That is 1 minus x. So put here the value of x and 1 minus x. Okay, you will get around root 2. I think here the correct answer is option D. Okay, so this was quite interesting question. Now guys, move on to the question number 5 here. So here you can see 4 identical plates, 1 2 3 4, are placed parallel to each other at equal distance as shown in the given figure. Plate 1 and 4 are joined together. So plate 1 and 4 joined together. So guys, suppose potential of plate A is potential of first plate is A. So potential of fourth plate is also A, because they are connected. After that, student, you can see a dielectric slab of dielectric constant 2 is introduced between these two plates. So guys, now let's say that here we are getting 3 capacitor, first, second and third, 3 capacitor. So student, if we talk about the first capacitor, suppose this is plate 1, this is plate 2. So this one is the first capacitor, and this one is the second capacitor, because one first capacitor and the second capacitor both are connected in series. And if you talk about the capacitor number 3, see, this terminal is common, because fourth this one is the common for see, let's say this is fourth, na? Terminal fourth, because the potential of first terminal and fourth terminal is same. That's why we are joining these two. Okay, and after that, see, this capacitor is between 3 and 4, na? So now connect here. So guys, connect here. So student, now this is going to give you, just a second, let me erase this part. Yeah, okay, so now guys, this is going to give you the total capacitance of this circuit. Okay, after that you can easily get the capacitance of this system. So first of all, student, when we have introduced here the dielectric slab, na, so capacitance increases by K times, as you know that. So I can say that capacitance of this part is C, for this one is C, and for this one is what? Kc, because we have introduced dielectric slab between the plate of 2 and 3, between the plate of 2 and 3. So capacitance of this capacitor is what? Kc. For this one C, and for this one is also C. So guys, now these two capacitors are connected in series, na? So C into Kc divided by C plus Kc. So this is giving you what? Total capacitance, I think, and the value of K is given 2 here. So I think you will get 5C by 3. This is the capacitance of these two capacitors, because they are connected in what? They are connected in series. After that, student, what we have to do? After that, student, see,
the capacitance of the system between 1 and 3. Okay, 1 and 3 and 2 and 4 are C1. So guys, we got here the value of C1 na, between 1 and 3. Okay, 1 and 3 na. Okay, 1 and 3, or I can say that, yeah, this is 1 and 3. So this one is C1. Now what we have to do, we need the value of C2. And guys, you know that if we talk about C2, so we have to find out the capacitance between 2 and 4. We have calculated here. Just a second, let me erase this part. We have done some calculation mistake here. Guys, हमें क्या find out करना है? हमें find out करना है अब कि 1 और 3 के बीच में total capacitance कितना है. मतलब this is 1 and this is third terminal. Okay, this one. So between these two, we need to find out the total capacitance. So guys, see, these two capacitors are connected in series and they are parallel with this capacitance. So see, total capacitance between 1 and 2 is what? So here I can say that C into Kc divided by C plus Kc. Okay, plus C. So after solving, you'll get 5C by 3. Now we have to find out the capacitance between terminal 2 and 4. Terminal 2 and 4. So guys, this is what? This is terminal 2 now. This is terminal 2, you can say that, and terminal 4 is this. This is terminal 4. So guys, now I can say that this one and this capacitor both are connected in series. So C into Kc divided by C plus Kc and plus C. So this is also equal to 5C by 3. So ratio here is what? 1. Ratio here is 1 because we have to find out this ratio. No? So here the correct answer is option B. Okay, so वापिस आ जाता हूं मैं. ठीक है. So guys, now move on to the next question. Let us discuss the next question now. Guys, now let's talk about the question number 6. This is quite interesting and this one is from semiconductor. So guys, here NPN transistor is connected in common emitter. Common emitter. So guys, let us draw here the circuit first. Common emitter. Okay, common emitter. So guys, this question is like that. Suppose this is RB. Okay, this is RB and let's take this one is resistance. Here I can say that suppose load resistance, you can say that here RL is given. So let's take this one as a RL and here connect a VCC. Okay, VCC and this one is, let's say, earth kar diya tha. ठीक है. And here VCE, I think VCC. Yeah, VCC is given here 9 volt. Okay, you know that guys, you know that this is what? Here voltage between B and E. This is VBE. Okay, and this one is what? This one is VCE. This one is VCE. Okay, find. Now the next part, student, what we have to do, let us apply KCL here. So I can say that VCC is equal to ICRL plus what? VCE. Plus VCE, because let's say that here IC current is flowing and this resistance is RL. So VCC is equal to ICRL plus VCE. Okay. So now now after that you can see here VCC is given 9, ICRL, we don't have any idea about IC here, and VCE is given 5 volt here. And I think RL is also given here 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. So student, from this you can easily get the value of what? You can easily get the value of IC from this by doing the calculation. 9 minus 5 divided by what? Divided by RL. This is going to give you the value of IC. Okay, after that, student, you can see here beta is also given. So if beta is also given, so beta is what? Current gain, na? So here I can say that beta is equal to IC by IB because input current is IB, output current is IC because emitter is too common here. So this is going to give you the value of IB. So this is equal to IC upon beta. Okay, so now we'll get the value of IB from this. But we need resistance RB. So guys, we can write here one more equation. VCC is equal to IBRB plus VCE. See here current flowing in this part is, let's say this is IB. Okay, so guys, now we have already calculated IB and VCC is already given here. VCE is already given. So here RB is equal to what? VCC minus VCE divided by what? Divided by RB. So after solving, you will get the value of IB that is equal to, I think that is equal to C here. So guys, this here you can see this is basically ohm. Okay, this is ohm. Okay, this is ohm, guys, not kilowatt. So this is kilo ohm is given. So here the correct answer is what? Option C. Now move on to the question number 7. So guys, if you talk about the question number 7, so a small particle of mass m
mass m here, charge minus q is placed at point P on the axis of a uniformly charged ring. And guys, here R is very large as compared to small x. Okay, so guys, this particle is oscillating, so we have to find out the angular frequency of this particle. So guys, what is the electric field at P point due to this due to this ring? I can say that ring, because this ring is uniformly charged, no? So guys, that is equal to kqx divided by what? Divided by r square plus x square power 3/2. But here already mentioned, na, this x is very small as compared to r, so I can say that here electric field is kqx divided by, I think, rq. So guys, now what is the force experienced by that charged particle? Q into E. So F is equal to Q kqx divided by r cube. And guys, you know that force is equal to what? M omega square x, na? Guys, this force is equal to m omega square x. Let me hide myself. Okay. So guys, now so from this you can easily get the value of omega. X cancel here. So omega is equal to q k q divided by r cube m. So here the correct answer is what? I think correct answer is option A. You can also put the value of k, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Now move on to the question number 8 here. So guys, I'll give you the just hint of this question. Okay, we are not going to discuss this question in detail. So here you can see in the given figure, guys, in the given figure, two straight infinite conductor carry a current I. Okay, here I current is flowing, and here I current is also flowing, but in downward direction, and they are parallel and separated by distance 2a. Okay. Now, a circular conducting ring of radius a in the plane of the parallel wire lies between the two straight conductors. Okay, and guys, they are insulated from them. Now, the mutual inductance between the circular ring guys and the straight conductor. So guys, we have to find out the mutual inductance. So first of all, student, I'm directly writing here the phi, d phi is basically equal to mu naught I divided by 2 pi a. This is what? This is the magnetic field due to what? Guys, due to a infinite current carrying conductor, na? That is equal to 1 upon, guys, see here, first of all, if you talk about, suppose, if you're saying that this is radius a, this angle is theta. So guys, if this angle is theta, this is r, na? So this r is equal to what? This r is equal to a 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. So what is dr? Dr is a. Differentiate this with respect to theta. So I think we'll get a cos theta sine theta d theta. This is the value of dr. So guys, now here 1 minus cos theta. 1 minus cos theta plus 1 upon e. Guys, this can be written as 1 plus cos theta into guys, here we'll get 2a square sine square theta into d theta. Guys, this is the flux. Guys, this is the flux of this part. This is the flux for this element. Okay, and now for total, what we have to do, just do the integration here from 0 to pi. Okay, and the rest of the part is calculation. You will get the answer here. So guys, just keep this relation in your mind. Okay, this is quite interesting and quite difficult problem for you. So after solving, you'll get option B. Now move on to the next question. Guys, see here, two long straight parallel wire. Guys, two long straight parallel wires are kept at the ends of a diameter of a circular conductor of radius 1 meter. Okay, the wire A carries a current of 1.6 directed downward. Guys, directed downward. So let's say, guys, let's take this downward. Suppose this is wire A. Okay, and wire B carries a current of this one is upward. So guys, we are representing with dot na. So here 1.2 ampere and here 1.6 ampere. Now after that, student, the magnitude of magnetic induction at point S, let's say this is point S, at a distance 1.6 meter from A. So guys, we know that, see, this is now. So guys, now there are two wires, there are two conductors and current is flowing on them. We have to find out the net magnetic field. So guys, magnetic field due to this A wire at this point is in this direction, that is BA. You can use palm rule here. Okay, and magnetic field due to this B wire at this point is in this direction, BB. So guys, net magnetic field is what? That is equal to root under BA square plus B of B square. Guys, this is see, just put your palm, okay, these four fingers in the direction of the current,
palm is in the direction of the point at which you are calculating the magnetic field. Okay, so for B point you can say outward. Okay, and palm is in the direction of the point S na, so I'm getting my thumb towards A, so that's why BB is in that direction. So guys, now what is the magnetic field due to infinite straight wire? You know that mu naught I divided by what? Divided by 2 pi A. Divided by 2 pi A. So guys, use this formula to get the value of magnetic field due to the wire A and due to wire B. So guys, this 16 is already given, and you know that this length is what? Because your radius is given 1 meter, so this length is 2 meters. So you can calculate this length by how? By using Pythagoras, 2 square minus 1.6 square. So you'll get this length as well. After that, guys, use this formula mu naught I divided by 2 pi A for both wires. You'll get the magnetic field due to wire A as well as B, and just put the value of BA and BB in this equation 1. You'll get the net magnetic field. Okay, so you'll get, I think, option A. Now guys, this one is from units and dimension. Here you can see a beaker contains a fluid of density this, a specific heat this, viscosity this. The beaker is filled up to height h. To estimate the rate of heat transfer per unit area, it means Q by A, when a beaker is put on a hot plate, a student proposes that it would depends on these four terms. So it means guys, here Q by A is directly proportional to what? It is depending on S del theta divided by H, and it is also depending on eta. Yes or no? It is also depending on eta, student, and this is also depending on 1 by rho g. Okay, 1 by rho g. And guys, here del theta is the temperature. So guys, you know the method to get the relation of Q by A here. Guys, let's take here power A, B, C. Okay, and guys, now what you have to do? Just put the dimensions on the left hand side and right hand side. Equate the dimensions. Equate the power of M, L, and T. You will get the value of A, B, and C. Okay, and just put the value of A, B, and C here. You will get the relation, and you will get correct answer, option A. So guys, this one is completely based on what you might have done applications of dimension, so this is one of the application of dimension, to get the relation by using the dimension. So same thing, rest of the part is completely pure mathematics. Now move on to the next part. Next question. So here, student, we have given xt here, that is equal to A cos pt. Okay, a particle is moving and the coordinates of the particle is given at any time t. So this is yt is equal to what? This v sin pt. So student, now if we see, this is equation 1 and this is equation 2, or you can say that let's write this one like that: x by a is equal to cos pt. This would be much better. This is equation 1, and this is yt divided by b is equal to sin pt. This is second equation. Now student, what we have to do here, now, squaring both sides and adding equation 1 and 2, you'll get ellipse here. You'll get the equation of ellipse here, because student, this is x square by a square plus this is y square by b square is equal to 1. So the path of the particle is elliptical, not circular. So this is incorrect. This is incorrect. Now student, you can see velocity and acceleration of the particle are normal to each other. So guys, how can we find out the velocity? You know that velocity is equal to what? Dx by dt plus dy by dt j cap. So guys, what we have to do, just differentiate this x with respect to time, you will get the x component of velocity. Differentiate this y with respect to time, you will get the y component of velocity. After that, after getting the equation of velocity, you can get the value of acceleration as well, that is dv by dxi, dv by dt. Guys, dv by dti, dv by dti, and this one is what, guys? This one is dv by dt j cap. Guys, this would be x component, this would be y component. So student, after getting the value of v and a, here time is given, t is equal to pi by 2, see, t is equal to pi by 2a, and guys, when we'll take the dot product of a with v, okay, so we'll get 0 after putting the value of t. So here correct answer is option B.
Guys, find out the expression of velocity, find out the expression of acceleration, by differentiating. Yeah, simple mathematics. And guys, when you do the dot product of A with V by using the value of t is equal to pi by 2a, you'll get the dot product of A and V is equal to 0. It means they are perpendicular to each other at a time of t is equal to pi by 2p. That is the answer here. Correct answer, option B. Now, move on to the question number 12 here. Student, this one is a standard question. You might have seen this question. A cylindrical vessel containing liquid of density rho. There are two holes in the side walls at a height of h1 and h2. So guys, let's say this one is h1, this one is h2, and the total height of the liquid is h. Now student, the range is same. So guys, first of all, let's take this velocity is v2 and for this one v1. So guys, if you know the velocity of efflux formula, so this is what, root under 2g h minus h1. This is v1 now, and what about v2? This is root under 2g h minus h2. So guys, this is v1 and v2. And guys, one more point, range is same now, and you know that range formula is what, velocity into time. Time is the same for both. Guys, time is not same. We can calculate the time by using this formula, root under 2h by g. So put here. So guys, you can say that v1 t1 is equal to v2 t2. Just put here. So this is 2g h minus h1. Here this is root under 2 h1 by g is equal to root under 2g h minus h2 into root under 2 h2 by g. Okay. So guys, now after that, what we have to do, guys, when you solve this equation, you will get capital H is equal to h1 plus h2. After solving, squaring both sides, you will get capital H is equal to h1 plus h2. But student, we have to find out the height of a hole for which the range of the efflux would be maximum. Range would be maximum. So student, let us write here the range first. So guys, range here, let's say height of that hole is h. So here this range would be, velocity is root under 2g h minus small h, and time is what, root under 2h by g. So guys, what we have to do, differentiate this r with respect to small h and equate with 0. Okay, because whenever we need the condition of maxima and minima, so this is the way to get the condition. So differentiate this r with respect to h, and after equating with 0, you will get the condition small h is equal to capital H by 2. And what is capital H? That is h1 plus h2. So h1 plus h2 divided by 2. This is the answer. This is the required condition for which the velocity of the range of efflux would be maximum. Okay. Now, move on to the question number 13. Guys, this one is completely based on energy conservation. So guys, we have given here sun. Let's take this is earth and we are projecting particle. Okay. See, a rocket is launched normally to the surface of the earth. Let's take this is earth, this is sun. Along the line joining the sun and the earth. Along the line joining the sun and the earth. The sun is at a distance this times heavier than the earth. At a distance 2.5 into 10 raised to power 4 times larger than the radius of the earth. And guys, the escape velocity from the earth's gravitational field is this. You know that, guys. The minimum velocity Vs required for the rocket, to be able to leave the system of sun and earth. So guys, we are projecting a particle with a velocity Vs. Okay. So guys, now guys, what we have to do, guys, finally this rocket is going to leave the gravitational field of the sun and the earth. So guys, when it will leave the gravitational field of the sun and the earth, then potential energy of this rocket will become 0, because there will be no interaction between the earth and this particle, between the sun and the particle. So potential energy will be 0, and we are calculating here the minimum velocity, required minimum velocity. So we'll take here velocity 0. It means kinetic energy 0. So it means initial total energy is equal to final total energy. Initially it has kinetic energy and it has potential energy due to the earth. So G small m mass of earth divided by radius of earth. Okay, minus potential energy due to sun and this due to sun and this rocket, because there is interaction between the sun as well as the rocket. Okay, let's take this one is R. So Gm mass of sun divided by R is equal to 0. So rest of the part is calculation. Rest of the part is completely calculation. This is the equation. Okay, rest of the part is maths. So after solving, you will get the option B, I think. Okay. Now move on to the next question, question number 14 here. Guys, this one is from the rotational motion. A hollow sphere of moment of inertia this
and thin loop of moment of inertia of this roll without slipping down an inclined plane. The ratio of their times for arrival. So guys, first of all, you might have seen this formula here. You might have seen this formula G sine theta 1 plus I divided by mr square. You might have seen this formula. This is the formula which will give you the acceleration of what? Acceleration of the loop. You can say that any object which is rolling, okay, rolling on this inclined plane. Okay. So guys, now next part, you can easily calculate the acceleration of what? Acceleration of this sphere. Okay, acceleration of this ring. Okay, and you'll get, I think this one you'll get 3 by 5 G sine theta almost. Okay, guys, you have to cross check here. And this is 1 by 2 G sine theta. Guys, what you have to do, just put here the moment of inertia of the sphere, and as well as this loop, you'll get acceleration of a sphere and acceleration of ring. Okay, now the next part, student, we have to find out the time. This length, let's take this length is L. So guys, L is equal to 1 by 2 a t square. Now, so t is equal to what? Root under 2L by a. So guys, just find out the time taken by the sphere to the time taken by the loop. Okay, and that's it. This is 2L divided by acceleration of a sphere. This is 2L divided by acceleration of what? Acceleration of the loop. That's it. The rest of the part is calculation. After solving here, you'll get the correct answer here, option B. Now move on to the last question. Guys, here the temperature of a diatomic gas. And guys, we know that for diatomic gas, degree of freedom is, 3 plus 2, 5. Na? If moment of inertia of the molecule is this, then the root mean square velocity is what? So guys, here moment of inertia of the molecule is given. So first of all, student, if we talk about the rotational degree of freedom, so rotational degree of freedom of this diatomic gas is 2. So student, we know that each degree of freedom having energy 1 by 2 kT. So 2 rotational degree of freedom having energy 1 by 2 kT into 2. This is what? Rotational energy. And guys, rotational energy that can be written as 1 by 2 I omega square. Na? So this is equals to kT. So I think from this you'll get the value of omega 2 kT divided by what? Divided by I root under. So guys, this will give you the value of omega. Just put here the value of k, t and I. That's it. So guys, this is all about the physics portion. Okay, तो मैंने एक्चुअली आपको एक्सप्रेशंस वगैरह, इक्वेशंस वगैरह ला के दिया, क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको डेटा के साथ सॉल्व करने लगता तो आपका काफी सारा टाइम लग जाता, बट एट द एंड कैलकुलेशन आपने ही करना है, इसलिए मैंने सबके रिजल्ट इक्वेशंस वगैरह ला के दिखा दिया है, बाकी आप आगे का खुद से कर लीजिएगा. सो गाइज, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. So thank you so much everyone. Hello everyone, welcome to GoPrep channel. So now we are going to discuss GTSC chemistry slot 1 paper. I hope आप सभी ने एग्जाम को बहुत एंजॉय किया होगा, और जो बच्चे इस पेपर को नहीं अटेंड कर पाए हैं प्लीज अगले स्लॉट में पेपर को जरूर दीजिए, और मंडे को जो हमारा वर्कशॉप है उसे भी अटेंड जरूर कीजिए. ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना केमिस्ट्री के इस कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इन सॉलिड ईच NH3 मॉलिक्यूल has 6 other NH3 molecules as nearest neighbor. Okay, ये इंफॉर्मेशन है. डेल्टा H sublimation of NH3 at melting point is this much. ये दिया हुआ है. And the estimated delta H of sublimation in absence of hydrogen bonding is this much. तो 6 मॉलिक्यूल 6 NH3 मॉलिक्यूल से अटैच है, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू. तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है तब सब्लिमेशन की एनर्जी इतनी है, और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एब्सेंस में इतनी सब्लिमेशन एनर्जी है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालना था, बहुत इजी है. तो आप देखिए, इसका राइट आंसर पहले नोट कर लीजिए, सी होगा. आई होप आप सभी लोगों ने सही लाया होगा. तो देखिए, हर एक अमोनिया, जैसे ये एक अमोनिया है, 6 अमोनिया से अटैच है, ठीक है. तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है. तो देखिए, द एनर्जी ऑफ H बॉन्ड क्या हो जाएगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो अटैच है तब की माइनस, और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब अटैच है तब माइनस. हम ये एनर्जी को निकाल, सबको समझ में आ रहा है? विथ H बॉन्ड एंड विदाउट H बॉन्ड. तो ये किसकी एनर्जी लग गई? जो H बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन था, बट ये 6 मॉलिक्यूल के लिए था. तो पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 2.7 kg. बहुत इजी था. आई थिंक ये बहुत इजी वे में आप लोगों ने इसे बना लिया होगा. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकेंड नंबर, at certain temperature the first rate constant K1 is found to be smaller than
सेकेंड ऑर्डर रेट K2, मतलब K2 बड़ा है हमारा किससे, K1 से, ओके, स्मॉलर देन। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इवन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ग्रेटर देन, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसका बड़ा है इससे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, E2 इसका कम है, ठीक है। देन विल इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बच्चों खुद बताइए क्या हो जाएगा अगर जिसका K ज्यादा बड़ा है। K आपको पता है क्या होता है, A e⁻ -EA/RT, सो नथिंग न्यू, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जिसका ऑलरेडी K ज्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब आप जिसको बढ़ाओगे तो उसी की, क्योंकि उसका एक्टिवेशन K2 का क्या ऑलरेडी एक्टिवेशन भी कम है, तो इसीलिए इसी का K जल्दी बढ़ेगा। या तो डायरेक्ट देखते के साथ आप आंसर कर सकते थे। सो राइट आंसर इज K2 विल इंक्रीज फास्टर देन K1, बहुत इजी है ये। थर्ड नंबर, वंस अगेन इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। ए मेटल M रेडली फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सल्फेट, यहां तक कोई बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है, इस तरह के कई सारे मेटल हो सकते हैं। और वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सब इनसॉल्युबल ही होते हैं, तो यहां तक की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। बट द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सोल्युबल इन NaOH, अब ये बड़ी बात कह गया, तो ये कौन सा है, कौन सा मेटल ऐसा है जिसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोल्युबल हो जाता है, ठीक है, कोई बता सकता है। अरे जो एम्फोटेरिक होगा, कौन होगा बच्चा, जो एम्फिटेरिक होगा, पढ़ा है ना, बेरिलेट, एल्मुनेट, है ना, तो ए आपका बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, टीन की तरह, सोडियम की तरह। तो मैं इसमें ज्यादा रिएक्शन की जरूरत है, ये आपका टास्क है, आप एनसीईआरटी देखना, वहां पे बेरिलियम का रिएक्शन इसके साथ आपको दिया होगा, बेरिलेट आयन एंड ऑल, ठीक है। तो ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप इसको जरूर एक बार देख लेना। सो मैं इसको बहुत इजी वे में कह दिया, एम्फोटेरिक बिहेवियर के कारण इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, ए इसका आंसर हो गया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। Fe(H2O5NO(SO4) इज पैरामैग्नेटिक, देखते हैं क्या होगा। द Fe इन दिस हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। आपको पता है यहां पे NO का जो ऑक्सीडेशन +1 में होता है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज X है, कितना हो जाएगा, X H2O 0, सो +1 - 2 = 0, तो X है हमारा +1 में, और ये इसके डाइपोल मोमेंट से पता चलता है कि इसमें क्या हो जाएगा, +1 में है तो D6 और 4s1 हो जाएगा, D6 4s1, तो एक ये पेयर हो जाएगा, तो इसका सिचुएशन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके ये सही बोल रहा है, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, ए स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए तो क्या चाहिए हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ चाहिए था। आई होप आपने इसका आंसर बना लिया होगा, ठीक है। आई होप इसको याद रखना, इसके बोर मैग्नेटोन पे बहुत क्वेश्चन आ चुका है, √n × n+2, ठीक है, √7 × 3 × 5, √15, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसी के थ्रू हम लोग इसको पता करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट आंसर इज ए, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब ये जो है, अगर आपको याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, और ये कोई एक दिन में याद होने वाली चीज भी नहीं है, निमोनिक्स की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करें कि आराम से, आप जब कई बार पढ़ते तो कंपैरिजन करते रहे, बट मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतना इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके लिए इसके लिए पेयर रखा है, जरा देखिएगा, इसका आंसर बी है, एक्चुअली इसका आंसर बी है। 2 का क्या होगा, 1 एंड P। टेट्रागोनल के बारे में देख लेते हैं, तो क्या होता है टेट्रागोनल, 2 साइड इक्वल होता है और B इसके इक्वल नहीं होता है, और तीनों एंगल 90 डिग्री होता है, बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 साइड एंड। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन में मत घबराइए, ठीक है। आप देख सकते हो कि पहले आप कैटेगराइज करके पढ़ सकते हो कौन कौन है जिसमें तीनों साइड बराबर होता है, कौन एक साथ, उसको याद रखिए, तो बड़ा इजी वे में निकल जाओगे, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो नॉट अ बिग डील। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स Ml6n+, M has 4d इलेक्ट्रॉन एंड L is a strong। अच्छा, तो मेटल N+ कुछ होगा, इसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसे आता है उनके लिए तो आसान है, 1 2 3 4 5, जिनको नहीं आता है बहुत टफ क्वेश्चन पड़ जाएगा ये।
3 4। और आपको पता है कि क्या बोला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे, एक इसको पेयर करेंगे, इसको पेयर करेंगे, तो फाइनली क्या बना देंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना देंगे। और ये बच्चे अक्सर ऐसा करते आए हैं, बच्चे अक्सर करते हैं। बट बच्चों ज्यादा से ज्यादा L6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, इनर DsP3 D2sp3, यही तो होगा। ठीक है, तो इसके लिए पेयरिंग उतना ही होगा जितने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 2 ही पेयर होगा और 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा मेरा, याद रखिएगा। सो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ये नहीं, मैंने कई बच्चों को देखा है कि जितना पेयरिंग हो रहा है सबको करवा देते हैं। पेयरिंग अगर सब करवा दोगे तो एक वैकेंट रख के क्या करोगे, तो पेयरिंग उतना ही होगा जितने की जरूरत है। ओके, चलिए, सो राइट आंसर इज सी। अब आते हैं 7th नंबर में। एक अच्छा सवाल है, इजी ही है, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। तो बच्चों इसे देखते हैं क्या होगा, इसको स्टार्ट करें। कितने लोगों ने, आई होप इसको ध्यान से देखना कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहले सी है, इसको मैं मैकेनिज्म से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, समय तो कम है। देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले शिफ्ट करेगा और ये यहां आएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कॉम्बिनेशन से ये यहां अटैच हो जाएगा, जैसा आप इस केस में देख सकते हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस में रहेगा नहीं, तो ये फिर ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहां पे जब प्लस जनरेट होगा बच्चों, तो आपको पता है कि फिर यहां पे क्या होगा, फिर बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस आएगा, तो H2O जब अटैच करेगा तो यहां पे O से यहां पे अटैच कर जाएगा OH के साथ। ये सबको समझ में आ रहा है, यहां पे प्लस आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये OH अटैच हो जाएगा। बट एक चीज आप गौर करना, यहां पे कार्बन की जो वैलेंसी है, ये क्या चाहेगा, अपना डबल बॉन्ड पूरा करना। ये क्या चाहेगा बच्चों, अपना डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। बट उस चक्कर में अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कभी हो नहीं सकती। तो क्या करेगा, ये ऊपर की ओर यहां से रिंग टूट जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये H उधर को चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। सबको समझ में आया, पहले इधर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट कर, वो हमारा अटैच होगा, फिर डबल बॉन्ड, ये मैकेनिज्म होगा। और आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, सी। आई होप सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आपका आंसर हो गया। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है और इसका आंसर है ए। कितने लोगों ने इसे बना लिया, एक बार बताइए, कितने लोगों ने इसे बनाया है? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, OH है तो इसका क्या होगा, H प्लस के प्रेजेंस में है, ये H प्लस के प्रेजेंस में है, तो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेट करेगा इसको प्रोटोनेट करेगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट करेगा तो यहां प्लस आएगा, ये डीलोकलाइजेशन होगा, फिर 1 to एथाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1 to इथाइल शिफ्ट होगा हमारा। ठीक है, 1 to इथाइल हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहां चला गया, फिर ये H से यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी को ही गेन कर लेगा। ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर ये आ रहा था और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा इसको और डीलोकलाइजेशन के बाद 1 to इथाइल शिफ्ट होगा और फिर सिंपली डबल बॉन्ड बनाकर ये आपका एक कंपाउंड आपका बन जाएगा। सो राइट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। ये बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल भी है, तो इसको कैसे लोगों ने बनाया है 9 नंबर को देखते हैं। तो इसका 9 का जो पहले आंसर है उसको नोट कर लीजिए, ए होगा। अब मैं इसका डिटेल्स बताता हूं कैसे होगा। पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, फिर अमोनिया का अटैक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां बच्चों देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओजोनोलाइसिस के कारण ये यहां से ब्रेक डाउन होगा। ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों, यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं क्यों, और तो ये क्या बन जाएगा, 2 एल्डिहाइड बनेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप जैसे बच्चों को, 2 एल्डिहाइड बनेगा, यहां से ओजोनोलाइसिस होगा तो।
अब कौन सा सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो अमोनिया अटैक करेगा। बच्चों ये यहाँ पे मैकेनिज्म काफी बड़ा है, बट आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, पहले यहां अटैक करेगा, NH जाएगा, उसके बाद फिर वही NH3 इधर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका ये स्ट्रक्चर पहले बनेगा और फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे बच्चों को इसमें कोई इश्यू आना चाहिए। सो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। मैं इस पार्ट के मैकेनिज्म को थोड़ा सा कम यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि ये सिंपल सा है। पहले अमोनिया से जुटेगा, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, फिर उसकी शिफ्टिंग की सारी कहानी होगी, फिर वो नीचे जुटेगा। तो आई होप आप लोग इसको जानते होंगे। समय कम है, आपको सारे सब्जेक्ट के डिस्कशन करने हैं, इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। तो राइट आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 10, at 10 degree centigrade the osmotic pressure of urea solution is 500 mm, pi equal to CRT होता है, I भी ले लो। The solution is diluted and temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले था 10 डिग्री, बाद में हुआ 25 डिग्री। So osmotic pressure of dilute solution is, oh पाई 1 दिया हुआ है, पहले T1 भी दिया हुआ है, पाई 2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। तो पूछा है इनिशियल वॉल्यूम VI एंड फाइनल वॉल्यूम में रिलेशन क्या हो। यार ये तो बहुत इजी हो गया, अचानक से ऑर्गेनिक कितने अच्छे क्वेश्चन आए, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। तो इसको आंसर ए आया है। ठीक है, मैं इसको भी प्रूफ करता हूं, देखिए कैसे। सो पाई इक्वल टू CRT। बच्चों पहले कितना है पाई, 500 mm, इसको मैंने ATM में कन्वर्ट कर लिया, तो 500 बाई 760। आई की वैल्यू यूरिया के लिए क्या हो जाएगा 1, और आपको पता है C क्या होता है NYV, तो मैंने N यहां पर रहने दिया, NYV। ओके, V इनिशियल है, ये R रहने दीजिए। टेम्परेचर 283 है 10 डिग्री के कारण। फिर सेकंड कंडीशन में यहां आ जाइए, ओस्मोटिक प्रेशर इतना mm है, तो इसको ATM में कन्वर्ट कर लिया। मोल तो जितना भी था सेम ही रहेगा ना, सॉल्यूशन एक ही है, सिर्फ डाइल्यूट किया गया है, तो यूरिया के मोल में कन्वर्जन चेंज नहीं आएगा। हाँ, वॉल्यूम V फाइनल हो गया और टेम्परेचर नया 25 डिग्री हो गया। तो ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 5 इंटू VI। आई होप ये सभी बच्चों का आंसर यहां पर आ गया होगा। सो राइट आंसर इज ए, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। और जेईई मेंस में इस तरह के सवाल के चांसेस काफी ज्यादा है। 11 नंबर, ये बताने की जरूरत है क्या, ये बताने की जरूरत है। करेक्ट नेम ऑफ पॉलीमर, बच्चों क्या है ये, पोली आइसोब्यूटाइनिल है ना, डी। ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको नंबर को सिर्फ पहचान लो और फिर बाद में इसको रिपीट कर दो, ठीक है। सो नॉट अ बिग डील। सो दिस इज आइसोब्यूटाइलिन का, ये मोनोमर है किसका बच्चों, आइसोब्यूटाइलिन का, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो मोनो पॉलीमर बन जाएगा। ओके, उसके बाद एसर्शन है, इफ एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, बिल्कुल सही बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। रीजन, additional electron are repelled more strongly in 3p electrons in chlorine atom by, यार ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन यहां ज्यादा मिलता है फ्लोरीन में, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जाती है। तो ये तो सही बोल रहा है, बट उसका रीजन नहीं है नीचे, और ये गलत भी बोल रहा है। रिपल्सन 3p में ज्यादा नहीं 2p में होता है, क्योंकि साइज फ्लोरीन का छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। सो आई थिंक नॉट अ बिग डील। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और आपको पता है छोटे साइज के कारण फ्लोरीन में रिपल्सन ज्यादा होता है। सो आंसर क्या हो गया बच्चों, सी। नेक्स्ट, बाय नेम रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ये बताने की जरूरत है क्या, ये बाय नेम रिएक्शन है, अल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, अल्काइल फ्लोराइड बाय नेम रिएक्शन है। ओके, द स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इस बारे में थोड़ी बातें कम की जाती है, वहां पे सिलिकेट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आपको पायरो, नेजो, इस तरह के सिलिकेट्स के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो जेडली में सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। तो एक सिलिकेट यूनिट क्या होता है, SiO4 माइनस, ये होता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन को दोनों यूनिट शेयर करता है, एक ऑक्सीजन को दोनों यूनिट शेयर करता है, कुछ ऐसा होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 Si है बच्चों, 2 Si है,
ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 O7। तो एक सिलिकॉन पे +4, तो प्लस चार्ज कितने हो गए +8, और ऑक्सीजन कितना है -14। तो इसको बैलेंस होने के लिए 6 चार्ज और चाहिए, तो इसीलिए ऊपर में -6 लग जाता है। ये सबको क्लियर है? तो पायरोसिलिकेट्स क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या बताया बच्चों, सी। तो Si2O7 6-। ये सबसे इजीएस्ट तरीका था चार्ज निकालने का, कई बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है। ये तो देखो पायरो होता नहीं, ठीक है। ये साइक्लिक वगैरह हम अलग में जाएंगे, आप लोग को सिलिकेट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ग्रेडअप के यूट्यूब चैनल पे सिलिकेट्स के कुछ सिंपल लेक्चर मेरे देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, फ्यूल सेल फ्यूचर डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम कंबसन ऑफ ब्यूटेन एट इतना डिग्री। डेल्टा जी दिया हुआ है, और ओहो डेल्टा जी नॉट क्या होता है -NFE, सबको पता है, मैं समय क्यों इतना वेस्ट करूं। इसका आंसर आया है डी। अभी देखिए मैं आपके सामने बनाता हूं। तो डेल्टा जी क्या होता है बच्चों -NFE नॉट, तो E नॉट क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बाई NF। तो डेल्टा जी पता है, फराडे की वैल्यू, एन नहीं पता है आपको, तो एन के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन कहां गया है 0 से, कहां गया है -2 में, कहां गया है -2 में। तो पर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ, सॉरी एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ 2 का। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है यहाँ पे 13, और एक ऑक्सीजन से कितने हुए 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए 26। तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे 26, और यहां पे मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा जी को हमने किलो जूल से जूल में बदल दिया, और नीचे फराडे की वैल्यू रख दी, ये आंसर। इससे आसान ये नहीं हो सकता था, ठीक है, एक आसान सा सवाल। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों ने पेपर को एंजॉय किया होगा, और पेपर होता है सीखने के लिए। अगर गलती होती है तो गलती को देखिए, क्योंकि ये पेपर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट को सीखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ओके। तो जो बच्चे नहीं पेपर दिए हैं अगले स्लॉट में जरूर दीजिए, और मंडे को हमारा वर्कशॉप भी जरूर अटेंड कीजिए, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, बाय। Hello students, a warm welcome to all of you in GoPrep JEE channel. So today we are going to discuss class 12th pass JEE GTSC paper, slot 1 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। So let's start the discussion. I hope सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा and you must have liked the questions. So let's discuss it. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी थी -2,0 पे, तो इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका और सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो y डैश की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो -2,0 पे, तो -2,0 पे आप y डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ जाएगी -4, y को 0 डालोगे और यहां पे प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि y डैश की वैल्यू 4 आ रही है, किस पॉइंट पे, ऑब्वियसली -2,0 पे। अब आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो यू नीड टू डिफरेंशिएट वंस अगेन, आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो 2 प्लस ये हो जाएगा 2y को छोड़कर y डैश का y डबल डैश, और प्लस यहां पे y डैश को छोड़कर 2y का आ जाएगा 2y y डैश, मतलब स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी आप सॉल्व करोगे cos y इंटू y डैश, ये मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं यहां पे उसको निकालने के लिए। सो cos y को छोड़कर y डैश का y डबल डैश, और प्लस y डैश को छोड़कर इसका माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप दोबारा वैल्यू डालोगे, आप x को डालोगे -2, y को डालोगे 0 और y डैश को डालोगे 4, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यू विल चेक, आंसर आएगा -34। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहां से y डैश की वैल्यू निकाल ली -2,0 पे। सो दिस वाज द फर्स्ट टास्क। फिर हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया और डबल डेरिवेटिव किया, और हम y को डालेंगे यहाँ पे 0, x को -2, x तो कहीं है भी नहीं, और y डैश को डालेंगे 4, तो यहां से y डबल डैश की वैल्यू -34 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर वाज A। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना था, तो लेट्स मेक द डायग्राम की एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कर्व बनाएंगे। y इक्वल टू √x का जो कर्व होता है वो पैराबोला होता है, हाफ पैराबोला होगा, बिकॉज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फुल पैराबोला बनता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए, तो लाइन होगी y इक्वल टू x -2। तो x -2 वाली जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है।
और दोनों आपस में मीट करेंगे, जहां पे x माइनस 2 की वैल्यू रूट एक्स आ जाएगी। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखो तो आंसर आएगा, मुझे लगता है x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो x 4 आ गया तो दिस पॉइंट विल बी 4,2, तो दिस इज 4, ठीक है। और x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम लोग 0 से 4 तक रेड वाला एरिया पहले पूरा निकाल लेते हैं। 0 से 4 तक ये पैराबोला का एरिया निकाल लेते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो मैंने सर्कल लगाया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये पॉइंट भी 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 2/3 x की पावर 3/2। सो आई थिंक दिस विल बी 16/3 एंड माइनस 2, सो दिस विल बी 10/3। तो काफी आसान प्रॉब्लम था, आई होप सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो 10/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, आपको ये वाला एरिया बस आपको निकालना था, तो पूरा एरिया में से हमने ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दिया है, सो यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर्स का क्वेश्चन। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स और आपको कंडीशन दे रखी है a + 2b + 2c इज इक्वल टू 0, तो आपको a क्रॉस c का मॉड निकालना है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। देखो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, इसमें a और c के बारे में बात हो रही है और तीन वेरिएबल्स हैं a b c, तो आप एक काम करोगे, इसमें a और c को एक तरफ रखोगे और b को एक तरफ रखोगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दोनों तरफ हम मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेने पे क्या होगा, और स्क्वायरिंग भी कर देंगे, उससे क्या होगा, काफी चीजें एक्चुअली सॉल्व हो जाती है। बिकॉज a + 2b + 2c इज इक्वल टू 0 में और निकालना है a क्रॉस c, तो इसमें एक ही चीज हम कर सकते हैं, a और c में एक रिलेशन हम दे सकते हैं, लाइक लेट्स से कि a डॉट c निकल जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करने पर डॉट आता है। तो आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, मॉड a का स्क्वायर आएगा प्लस 4 मॉड c का स्क्वायर आएगा प्लस 4 a डॉट c आएगा इज इक्वल टू 4 मॉड b का स्क्वायर आएगा। तो जब भी कोई ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है और a और c में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो आप b को अलग कर दोगे, a और c को अलग रखोगे और मॉड लेके स्क्वायरिंग करोगे, एक ही तरीका है, और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। सो नाउ दिस इज 5 + 4 टाइम्स a डॉट c इज इक्वल टू 4। तो यहां से a डॉट c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1/4, और मॉड है मॉड c cos थीटा, यानी a और c के बीच का एंगल -1/4 आ जाएगा। तो आपसे a क्रॉस c पूछा गया है, तो a क्रॉस c की वैल्यू होती है मॉड a मॉड c sin थीटा। तो a 1 है, मॉड का c 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं। cos थीटा अगर 1/4 है तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी √15/4। सो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। a और c को अलग रखना है, b को अलग करना है और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है ताकि a और c में एक एंगल मिल जाए हमें। तो a क्रॉस c में भी हमें एंगल ही चाहिए होता है, बस sin थीटा चाहिए होता है cos थीटा की जगह, ठीक है। सो आंसर इज ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये IIT का पुराना सवाल है कि b अगर फर्स्ट टर्म है इनफाइनाइट जीपी की जिसका सम 5 है। आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है a/1 - r। b फर्स्ट टर्म है 1 - r, तो यहां से 5 - 5r की वैल्यू b आ जाएगी और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 - b/5। अब यहां से b का इंटरवल निकालना है, तो एक हम चीज यूज करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी आता है जब मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए और एक्सेप्ट 0 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से r की जो वैल्यू आपको मिली 5 - b/5 वो -1 से 1 में लाई करनी चाहिए। हमने फॉर्मूला लगाया, r की वैल्यू b के टर्म्स में निकाली और r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो -1 से 5 - b, अब इसे सॉल्व कर देते हैं और यहां से हमें b की रेंज मिल जाएगी। तो इट्स अ वेरी प्रीवियस, बहुत साल पुराना IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस विल बी -10 - b और ये हो जाएगा आपको, सॉरी 5 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू आएगी 0 से 10, लेकिन r 0 नहीं हो सकता, यानी कि b की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। सो 0 से 10 एक्सेप्ट 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो C इसका एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है, कॉमन रेशियो, लेकिन हमें b के बारे में बताना है। कॉमन रेशियो के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि डेट इज लाइंग बिटवीन -1 and 1, तो वहां से b की रेंज आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। अगर डिनोमिनेटर में आपसे पूछा गया n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल की डिग्री हमें बतानी है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, और यह भी बोला गया है कि m इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, जो भी n आएगा उसमें x की पावर हमें कोफिशिएंट भी निकालना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा डरावना सा लग रहा है, बट इट्स क्वाइट सिंपल। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो आप फटाफट इसको रैशनलाइज कर लो। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करोगे फर्स्ट वाले को, तो रैशनलाइज होके आ जाएगा 5x3, सॉल्व करके देखना, रैशनलाइज करोगे तो वो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5x3 - 1 का अंडर रूट, ये आ जाएगा। और ऐसे अगर आप दूसरे वाले को फैक्टराइज करोगे तो वो आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी बेटा पुराने
प्रीवियस ईयर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन में, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो पावर 8 हो जाएगी। अब जब इसको एक्सपैंड करोगे, आपको पता है a प्लस बी की पावर 8 और a माइनस बी की पावर 8 जब ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ इवन कोफिशिएंट सारे बचते हैं, मतलब ये बचता है ट्वाइस ऑफ 8c0 और 5x क्यूब प्लस 1 का रूट की पावर 8, ऐसी 8c2 और रूट 5x, मतलब दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि वो पावर 0 हो जाएगा बस, प्लस 1 की पावर 6 और दूसरे वाले का आ जाएगा स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा ये। तो अगर आप यहीं पर ही ध्यान से देख लो, अगर मैं यहां नीचे सॉल्व करूं तो ट्वाइस ऑफ, आप देख सकते हो 8c0 तो 1 होता है, ये बन जाएगा 5x क्यूब प्लस 1 की पावर 4 और आगे बन जाएगा 8c2 की वैल्यू होती है 28 टाइम्स 5x क्यूब प्लस 1 की पावर कितना आएगा का क्यूब आ जाएगा और यहां पे 5x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, मतलब ऐसे चलता रहेगी वैल्यू। अगर आप हाईएस्ट डिग्री देखो पॉलिनोमियल की तो हाईएस्ट डिग्री साफ नजर आ रही है, x क्यूब की पावर 4, तो हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है वो 12 आ रही है, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट आ रहा है 25 की पावर, देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बाहर आपका 2 भी आएगा, ठीक है। तो 2 जो आएगा वो आप देख सकते हो, मतलब पावर 8 में आ रहा है, ये भी पावर 8 में आ रहा है, तो 12 आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो 20 की पावर 4 आ रही है, तो यस सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सबको क्लियर है? तो यस सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आता है सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बाद 8c0 ये पूरा एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड करने के बाद आप साफ देख सकते हो 5x क्यूब प्लस 1 की पावर 4 जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सबसे हाईएस्ट पावर आ रही है, और आपको x की पावर 12 का अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो इट विल बी 20 इंटू 20 की पावर 4, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 डिटरमिनेंट क्या है, ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और डिटरमिनेंट 0 करना है, तो आपको बताना है एबीसी में क्या आएगा, मतलब क्या रिलेशन आएगा, एपी जीपी या एचपी। तो इसमें हम लोग एक कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 में हम लगा सकते हैं अल्फा टाइम्स C1 प्लस C2। तो उससे क्या होगा, आपका जो पहला कॉलम बनेगा वो ए अल्फा प्लस बी बन जाएगा, दूसरे वाला जो बनेगा वो बी अल्फा प्लस सी बन जाएगा, तीसरे वाला बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा यानी 2b अल्फा प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका बी सी 0 और ये भी आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी और 0। इसको 0 करोगे और उसके बाद आप लगाओगे फाइनली C1 को आप फिर से चेंज करोगे C1 माइनस C3 करके। तो उससे क्या होगा, आपका जो पहले वाला रो है वो जनरली कुछ टर्म्स इसमें 0 हो जाएंगे और ये आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, ये आएगा बी सी 0, ये आएगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी और 0। इसको 0 कर दोगे। सो अल्टीमेटली जब आप इसे पूरे को एक्सपैंड करोगे 0 के साथ 0 आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा एबीसी जो है वो जीपी में आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस इसको एक्सपैंड करना, आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, अल्फा C1 किया और उसे C2 में हमने ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। तो जब आप दोबारा फिर से C1 माइनस C1 माइनस C3 लगाओगे और एक्सपैंड करोगे तो आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा कि ए बी सी जो है वो आपके जीपी में आएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। यस आंसर इज बी। 40 कार्ड्स का सेट है, 1 से लेके 40 तक 5 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं रैंडम और उनको इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x3 24 हो जाए। देखो आपको 40 में से 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। लेट्स टॉक अबाउट सैंपल स्पेस फर्स्ट, ठीक है। तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 40 में से 5 हमने कोई भी कार्ड सेलेक्ट किए और उनको एक ही वे में अरेंज करना है इनटू 1, यानी पहले सेलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है। तो 40C5 इंटू 1 इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सबको सेलेक्ट करना होता और अरेंज करना होता तो 40P5 आता, बट यहाँ पे एक ऑर्डर है, आपको क्या करना है, पहले 5 सेलेक्ट करने और उन्हें एक ही ऑर्डर में लगाना है और कोई ऑर्डर नहीं लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो एक ही वे हुआ। अब आता है आपका फेवरेबल। अब फेवरेबल में यह है कि x1 लेस देन x2 लेस देन 24 होना चाहिए, लेस देन x4 लेस देन x5, यानी जो 2 नंबर लेने हैं वो 24 से कम होने चाहिए। अगर जो 2 नंबर लेने हैं वो 24 से कम कोई भी हो सकते हैं, तो 24 से कम नंबर है 1 से लेके 23 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं
तो 23 में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लिए हमने, लेट्स से 2 and 3, 2 and 5 कुछ भी ले लो, और उनको अरेंज कैसे करना है, एक ही ऑर्डर में अरेंज करना है कि x1 x2 से छोटा होना चाहिए। भाई आप 23 में से दो नंबर उठा लो, ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो अरेंज तो करना ही नहीं है हमें। तो एक नंबर 2 है, एक लेट्स से 10 है, तो 2 और 10 तो x1 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली और x2 10 हो जाएगा। तो बस दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एंड साइमल्टेनियसली एंड लगाया मैंने बीच में, दो नंबर 24 से बड़े लेने हैं, तो 25 से लेके 40 तक 16 नंबर होते हैं, 16 में से कोई भी दो नंबर ले लो जो 24 से बड़े हैं, 25 और 28 ले लो, 28 और 30 ले लो, वो ऑटोमेटिकली छोटा होगा x4 होगा, बड़े वाला x5 होगा। यहां पे लॉजिक ये होता है कि जब आपको 40 में से कुछ नंबर्स पिक करने हैं और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो बस हमें पिक करने हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो एक ही वे में लगेंगे। 1 2 3 मेरे पास कुछ 10 नंबर है, उसमें 10 में से 3 लेने, लेट्स से 1 2 3, तो 1 2 3 को अरेंज करने की जरूरत क्या है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सबको क्लियर हो गया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन इस टाइप की प्रॉब्लम्स जेई में बहुत बार आती हैं, एंड दिस इज ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, एंड यू शुड लर्न दिस मेथड कि क्या करना होता है। जब ऊपर नीचे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, रूट के अंदर एक डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, तो इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री हम लोग कॉमन निकालते हैं इस वाले पार्ट में से, यानी x की पावर 4 जो है वो हम कॉमन निकालेंगे। तो x की पावर 4 अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x² - 1 का इंटीग्रेशन, और x की पावर 4 अगर मैं कॉमन निकालूं यहां से तो x स्क्वायर बाहर आएगा, तो x की पावर 5 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा आपका आंसर 2 - 2/x² प्लस 1/, ये आपको लर्न करना है बच्चों ये वाला मेथड, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और x की पावर 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये अगला स्टेप होता है। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो आप पहले रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री बाहर निकालो और न्यूमरेटर में ऐसे डिवाइड कर दो। देखो 1/x³ - 1/x की पावर 5, और नीचे जो आएगा वो आपका अंडर रूट में आ जाएगा जो मैंने लिखा है 2 - 2/x² और प्लस 1/x की पावर 4। अब बस नीचे वाले को आपको t या t² लेना है, तो नीचे वाले को आपको t या t² लेना है, तो आप ले लो t² ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 4/x³ - 4/x की पावर 5 इज इक्वल टू 2t dt, आप देख सकते हो। तो फाइनली जब आप क्वेश्चन, मुझे लगता है बड़े आराम से अभी सॉल्व हो जाएगा, 2t/4 आ गया ऊपर वाला पार्ट, सो 2t dt by 4 और अंदर आ जाएगा t, से t से t कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2t प्लस c, और t हमने किसको लिया था वो आप देख सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सो करेक्ट आंसर इज d इज द राइट आंसर। तो ये तरीका आपको याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने बताया आपको कि हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, न्यूमरेटर में लेके जाना है, नीचे वाले को t रखोगे तो dt बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं, सो इट्स वेरी नाइस प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पे जीटीएससी में मिला है, ठीक है। वन मोर इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने अभी ये वाला एग्जाम नहीं दिया है तो प्लीज काइंडली गिव द नेक्स्ट स्लॉट, जो भी आपके आगे के स्लॉट्स बचे हैं आप उनमें दे सकते हो एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, जब आपका जीटीएससी खत्म हो जाएगा तो ऑन मंडे देयर विल बी अ वर्कशॉप एट 6 PM, तो प्लीज वो वर्कशॉप भी आपको अटेंड करनी है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। A is a matrix such that A into this square matrix is a scalar matrix। इसका मतलब बोला यह गया है कि अगर एक मैट्रिक्स है और 1 2 0 3 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें ये दोनों नंबर्स डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब हमें ए निकालना है, तो ए हम निकाल सकते हैं अगर मैं इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब k 0 0 k और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 2 0 3 का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका इनवर्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका k 0 0 k और इसका इनवर्स होता है, इसका डिटरमिनेंट 1/3 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये 1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, -2/3 ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये इसका इनवर्स हो गया बच्चों। इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट एडजॉइंट है, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा 1 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट याद होना चाहिए, और ये अपना साइन चेंज कर लेता है, और इसको डिटरमिनेंट 1/3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपका इनवर्स भी आ जाएगा, तो 1/mod a इंटू एडजॉइंट a कर देते हैं हम लोग, तो 1/3 से डिवाइड किया तो 1 -2/3 0 1/3। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको a मिल जाएगा,
ठीक है, a मिल जाएगा, वहां से 3a की जो वैल्यू मॉड दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ka का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, क्योंकि k को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो सब जगह जाके चिपक जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट लोगे तो हर एक रो में से या कॉलम से बाहर आएगा। तो ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। तो यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a मैं बताता हूं क्या आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, एक का आएगा k स्क्वायर और एक का आएगा मुझे लगता है 1/3, एक का आएगा 1/3। तो बिल्कुल यहां से k की वैल्यू आ जाएगी ±6। तो k निकल आया, तो k निकल आया तो आपका a भी निकल आएगा और a स्क्वायर भी आ जाएगा। तो a स्क्वायर भी आएगा एंड d इज द राइट आंसर। इतना, इसके बाद तो आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो k की वैल्यू ±6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, a कर लो फिर a स्क्वायर निकालो, तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लैम्डा r है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम। इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -b/a, यानी कि लैम्डा -2 का होल क्यूब। सो लैम्डा -2 का होल क्यूब और अल्फा बीटा आ जाएगा 3 × 10 माइनस लैम्डा, और अल्फा प्लस बीटा फिर से आ जाएगा। आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है लैम्डा -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 10 माइनस लैम्डा। सो लैम्डा -2 का होल क्यूब और -3 10 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा -2। तो अब आप इसको डिफरेंट, लेट्स से इस सम को हम s से डिनोट करते हैं, तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, बिकॉज यू हैव टू मिनिमाइज इट। और जब इसे सॉल्व करोगे, आई थिंक लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, 4 और -2, और लैम्डा की वैल्यू 4 के लिए, ठीक है, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो खुद से डिफरेंशिएट करके। सो लैम्डा 4 के लिए मिनिमाइज हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² - 2x + 6 = 0। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, विच इज रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई ए तो 1 ही है, तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। सो द फाइनल आंसर यू विल गेट इज 2√5। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यूज, आपको यहां से वैल्यूज मिल जाएंगी, लैम्डा 4 और लैम्डा -2। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 4 के लिए आप निकाल के देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसका मॉड भी निकालना है, तो मॉड आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी, मॉड आप निकाल लो, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है रूट के अंदर वो कितना आ रहा है, रूट ऑफ 4 - 24 -√20 आ रहा है, तो यानी √20 आयोटा, तो उसका मैग्नीट्यूड √20 आ जाएगा। ठीक है, तो √20 इज द राइट आंसर, विच इज 2√5। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व 11th क्वेश्चन। In a triangle ABC, coordinates of A are 1, 2 and equations of the medians through B and C are x plus y is equal to 5 and x equals to 4। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू बतानी है, तो हमें बेसिकली तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो 1, 2 A कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, B से जो मीडियन निकल रही है उसकी इक्वेशन है x plus y is equal to 5, और C से जो मीडियन निकल रही है उसकी वैल्यू है x equals to 4। उसके अलावा हमें सेंट्रॉइड की वैल्यू पता है, सेंट्रॉइड का पॉइंट पता है, विच इज 4, 1, और अब हमें दोनों B और C निकालने पड़ेंगे। तो जो C कोऑर्डिनेट होगा वो x equals to 4 पे लाई करेगा, तो लेट मी से कि यार ये 4, k हो जाएगा। तो 4, k का जो मिड पॉइंट होगा M, वो x plus y is equal to 5 पे लाई करेगा। तो आप देख सकते हो A और C का जो मिड पॉइंट होगा, जो M वाला पॉइंट होगा, वो होगा 5/2 और k plus 2/2। ठीक है, तो यहां से ये x plus y equal to 5 पे लाई करेंगे, तो इन दोनों का सम 5 होना चाहिए, तो 5 plus k plus 2 is equal to 10, और k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि C कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है 4, 3। सिमिलरली B कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी कोई ना कोई, अब ये तो सेंट्रॉइड से निकल जाएगा B कोऑर्डिनेट। तो आपको A पता है, C पता है, सेंट्रॉइड पता है, तो आपको B कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, लेट्स से 7, -2। ठीक है, क्योंकि 1 + 4 प्लस इसको x, y अगर आप मान लेते हो B पॉइंट को, by 3 is equal to 4, सेंट्रॉइड से आप निकाल के देख लो, 1 + 4 + B का x कोऑर्डिनेट by 3 is equal to 4। तो यहां से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो 2 + 3 + y/3 is equal to 1। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए हैं, वर्टिसेस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ x1, x2, x3
y1 y2 y3 1 1 1, ये आप सॉल्व करना एंड आंसर यू विल गेट इज 9. सो 9 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ठीक है, x1 x2 x3 1 7 4 और y1 y2 y3 2 -2 and 3 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और मॉड ले लोगे तो आंसर यू विल गेट इज 9. क्वेश्चन नंबर 12. सो बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट, दो बॉक्स दे रखे हैं. एक बॉक्स है जिसमें 2 व्हाइट हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और अनदर बॉक्स भी है जिसमें 4 व्हाइट हैं, 2 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं. नाउ इफ 2 balls are drawn at random without replacement from a randomly selected box, अगर आपको A और B दो बॉक्स दे रखे हैं और इसमें से आपको किसी भी एक बॉक्स में से 2 बॉल्स निकालनी है और एक बॉल्स व्हाइट आई है और एक बॉल रेड आई है, ये बता दिया गया है. बताओ कि दोनों बॉल्स बॉक्स बी से आई थी. तो सिंपल क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम में आप लगाओगे फॉर्मूला, नीचे जो आएगा वो आएगा कि एक रेड आई है और एक बॉल जो है वो व्हाइट आई है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर बताओ कि वो बॉक्स बी में से निकली थी. सो टोटल प्रोबेबिलिटी में लगानी पड़ेगी. सो एक व्हाइट और एक रेड आई है, तो लेट्स से बॉक्स ए को हमने सिलेक्ट किया हाफ प्रोबेबिलिटी से, और बॉक्स ए में से 1 रेड निकालनी है और 1 व्हाइट निकालनी है. तो सैंपल स्पेस टोटल बॉल 7 है, 7c2, और एक रेड निकालनी है तो 3c1 इंटू एक व्हाइट निकालनी है 2c1, प्लस बॉक्स बी को सिलेक्ट किया 1/2, और बॉक्स बी में टोटल है 9 बॉल्स, तो 9 में से 2 निकालनी है, एक व्हाइट यानी 4c1 और एक रेड 2c1. ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई कि आपने कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट किया और उसमें से हमने 2 बॉल्स निकाली, एक व्हाइट एक रेड. तो हमने पहले बॉक्स ए सिलेक्ट किया प्लस फिर या फिर बॉक्स बी सिलेक्ट किया, और टोटल सैंपल स्पेस फेवरेबल में एक व्हाइट एक रेड. अब फेवरेबल केस कौन सा बेस थ्योरम में कि बॉक्स बी में से आनी चाहिए. सो 1/2 इंटू 4c1 इंटू 2c1 अपॉन कितना आ जाएगा 9c2. ठीक है, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, बस जस्ट यू नीड टू डू द कैलकुलेशन. यहां से आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है एंड देन यू विल गेट द आंसर एज 7/60. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप आराम से सॉल्व कर लोगे. 4c1 2c1 by 9c2, ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है एंड आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा 7/60. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 13, ये फंक्शन का क्वेश्चन है. x - 4 अपॉन x + 2, आपको 2x + 1 दिया हुआ है, एक्सेप्ट 1 एंड -2. आपको इंटीग्रेशन बताना है fx का, यानी पहले fx निकालना पड़ेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं. तो x - 4 अपॉन x + 2 अगर 2x + 1 है. अब आप बोलोगे सर x कैसे निकालेंगे, तो x - 4 अपॉन x + 2 को आप लोग t ले लो, तो यहां से x की वैल्यू t के टर्म्स में निकल जाएगी. तो ये आएगी x - 4 इज इक्वल टू tx + 2t, और यहां से 2t + 4 अपॉन 1 - t की वैल्यू x आ जाएगी. तो इन शॉर्ट जो आपका ft की वैल्यू आ गई वो आ गई 2t + 4 अपॉन 1 - t. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. सॉरी मैंने कुछ इसमें गड़बड़ करी है. x माइनस, अच्छा अभी तो पुट करेंगे, सॉरी अभी तो x को मैंने t के टर्म्स में रखा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. तो f ऑफ t आ जाएगा 2x + 1 यानी 2 ऑफ 2t + 4 अपॉन 1 - t + 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ये आएगा मुझे लगता है 4t + 8 + 1 - t अपॉन 1 - t. तो यहां से आपको ft की वैल्यू मिलेगी विच विल बी 3t + 9 अपॉन 1 - t. आई थिंक इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान है, लीनियर बाय लीनियर है, डिवाइड कर लो, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लो एंड यू विल गेट द आंसर एज बी. बी इसका आंसर आ जाएगा. तो आई होप दिस इज क्वाइट सिंपल, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा. अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें x - 4 अपॉन x + 2 है, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है P एंड Q और P एंड R. ये आपको मैंने ट्रुथ टेबल यहां पे दिखाया हुआ है, तो आप आराम से ट्रुथ टेबल देख सकते हैं. ठीक है, और इसमें P Q R के सारे केसेस आपको लेने थे, और उसके बाद देन यू कैन ड्रॉ द टेबल, और यहां से जो आपका आंसर आएगा डेट विल बी P. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल, आप डायरेक्टली देख सकते हो. एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75. तो आपने 30 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 75 हो जाएगा, सम 75 इंटू 30 हो जाएगा. अगर आपने इन सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 से डिग्रीज भी कर दिया, 25 इंटू 30, तो आपका मीन जो है वो ही रहने वाला है 75 इंटू 30. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप सॉल्व करके देखना, इट विल बी 4/3. ठीक है, चलो, तो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन. सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. Okay, thank you students. Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MAT, the Mental Ability Test. Friends, I hope that your GTSC went really well, and if still now you have not attempted the same, please do attempt it in the next slot
The link for the same has been given in the description box. Alright, and now let us straight away begin with the discussion of questions. Now friends, this was the first question. Let us discuss this. आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कई बार किए होंगे. These kind of questions are not at all new for all of you. अब इन क्वेश्चंस को एक नए तरीके से मैं आज आपको करना सिखाऊंगा. So guys, दो लोग हैं A and B. दो लोग हैं A and B. अब कहा जा रहा है that 4 years ago, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 7:5 था और 6 साल अब से यानी 6 years from now उनकी एज का रेशियो 19:15 था. ऑलराइट, तो दो लोग हैं A and B, इनके बीच की एज का रेशियो 4 साल पहले 7:5 था और 6 साल बाद 19:15 होगा. और गाइस, ये ड्यूरेशन कितना है? आज से 4 साल पहले और आज से 6 साल बाद ड्यूरेशन है टोटल 10 years का. ड्यूरेशन है टोटल 10 years का. ऑलराइट एवरीवन, एंड नाउ लेट अस फाइंड द आंसर बाय द हेल्प ऑफ शॉर्टकट. तो गाइस, शॉर्टकट ये कहता है कि ये जो नीचे में जो टर्म्स हैं इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकाल लो, विच इज 4. पॉजिटिव डिफरेंस, मल्टीप्लाई इट विद दिस, you will be getting 40 divided by आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे 15 into 7 is 105 minus 19 into 5 is 95 and जब इसको आप सॉल्व करोगे you will be getting 10 which will be giving you the value as 4. तो गाइज, ये ऐसा है कि x corresponds to 4, यानी क्या लो कि 1 corresponds to 4, तो 7 corresponds to 28. अब गाइज, अगर 1 corresponds to 4 है तो 7 corresponds to 28, 5 corresponds to 20. अगर आप नीचे वाली वैल्यू से कर रहे हो तो आप केवल ऊपर वाली वैल्यू से ये निकाल लो. हो गया. तो अब आंसर तो आपके सामने इजीली आ जाएगा. 4 साल पहले ए की एज 28 थी, 4 साल पहले बी की एज 20 थी. ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाए 6 साल बाद क्या एज होगी तो गाइज 28 में 10 ऐड कर देना, 20 में 10 ऐड कर देना, क्योंकि 10 साल बाद की बात की जा रही है. ऑलराइट, एंड नाउ आपसे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज. तो गाइज, प्रेजेंट एज आप कैसे निकालोगे? गाइज, अब आप ही बताओ, सिंपल कॉमन सेंस. ए की एज 4 साल पहले 28 थी, 4 साल पहले, तो आज क्या होगी? 4 ज्यादा होगी, 32. सिमिलरली बी की एज 4 साल पहले 20 थी, तो आज क्या होगी? 4 ऐड कर दो, 24. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ऑन द स्केल ऑफ 8, you will be getting 4:3. तो 8 से इसको कट करो, you will be getting 4:3, which is the required answer. Fine everyone, so the answer is option number C. So this is called aptitude, which enables you to solve the question quickly. Coming to this question guys, कहा जा रहा है that today is Tuesday. Guys, अगर आज Tuesday है तो कोई भी दिन अपने आप को 7 days बाद रिपीट करता है. आज Tuesday है तो 7 days बाद अगेन Tuesday होगा, उसके भी 7 days बाद अगेन Tuesday होगा. फाइन, ऑलराइट एवरीबॉडी. तो जब भी 7 days आते हैं या 7 के मल्टीपल में डेज आते हैं तो उसके बाद जो डे वो सेम आता है. जैसे आज ट्यूसडे है तो आज से 49 days बाद भी ट्यूसडे ही आएगा, बिकॉज 49 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7x. तो गाइज, इस 53 को हम 49 + 4 लिख सकते हैं. इससे होगा क्या? 49 इज मल्टीपल ऑफ 7 + 4. तो गाइस, ट्यूसडे प्लस एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ 7x विल रिमेन ट्यूसडे. इतना तो क्लियर है, बिकॉज 7 days बाद कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है. एंड प्लस 4 days, तो ट्यूसडे से 4 days बाद क्या आएगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड हेंस द राइट आंसर इज सैटरडे. तो गाइज, इस तरीके से, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, इट्स सिंपल कॉमन सेंस, आप इजिली आंसर निकाल सकते हो. तो कभी भी आपको दिया जाए कि आज XYZ डे है और इसके इतने दिनों बाद क्या डे होगा, उसको 7x प्लस के फॉर्म में लिख लो, बिकॉज 7x के बाद डे रिपीट हो जाता है. एंड फिर अब देखो बचा कितना है, तो ट्यूसडे से 4 दिन बाद आगे हम लोग गए और सैटरडे आंसर आ गया. फाइन. नाउ गाइज, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. अब गाइज, एक सिंपल क्वेश्चन है जहां पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना है. कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं. गाइज, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 0.2016, प्लस जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 0.1344 अपॉन
जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 0.168. फाइनली जब आप इनको ऐड करोगे, व्हेन यू विल बी एडिंग, यू विल बी गेटिंग 0.336 upon 0.168, which eventually will be giving you 2 as the right answer, and hence the answer is 2. Fine everybody, simple calculation आप normally कर लीजिए, but कुछ समय बाद जब आप लोग एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग लोगे तब आपको बताएंगे या आपको बताया जाएगा कि कैसे उनको हम मेंटली या वर्बली मल्टीप्लाई कर सकते थे. फाइन, नेक्स्ट. अब गाइस अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर इज मेड या अ क्रॉस इज मेड बाय जॉइनिंग 5 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. तो गाइस कुछ आप इस तरह से देख लो कि कितने सारे स्क्वायर्स हैं, कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, एंड ये भी है. सो गाइस अ क्रॉस इज मेड बाय यूजिंग 5 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 and 5 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस. तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस क्या होगा, 4 स्क्वायर्स हैं अभी यहां दिख रहे हैं, इसको तो आप क्या ही जोड़ोगे. ऑलराइट, बिकॉज हमें तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस निकालना है. ऑलराइट, सो देयर आर 4 फिगर्स ओवर हियर. दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 4 multiplied by 5 plus 5 plus 5, 5 plus 5 plus 5, ये किया जा रहा है. And hence what you will be getting, 15 into 4, which is nothing but 60. Alright everyone, and the answer to the question is 60. Clear? बहुत ही simple question था. Next, and the very easy question guys. सो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 45, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 45. इन 45 में से योगा क्लास कितने लोग अटेंड करते हैं, क्लियरली गिवन 26. एंड जिम्नास्टिक क्लास कितने लोग अटेंड करते हैं, क्लियरली गिवन 28. ऑलराइट एवरीवन, सो क्लास में आउट ऑफ द 45 स्टूडेंट्स 26 अटेंड योगा क्लास, 28 अटेंड जिम्नास्टिक क्लास, and 5 students do not attend anything. उनको माइनस कर दो गाइस. 45 में से 5 students do not attend anything, उनको माइनस कर दो. so 40 is remaining. यानी उन 45 बच्चे जो क्लास में हैं उनमें से 5 तो कुछ अटेंड कर ही नहीं रहे, 40 ही लोग हैं जो कुछ ना कुछ अटेंड कर रहे हैं. एंड उन 40 में से ये कैसे पॉसिबल है, उन 40 में से कैसे पॉसिबल है कि 26 योगा भी कर लें एंड 28 जिम्नास्टिक भी कर लें, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 54, यू विल बी गेटिंग 54. और ये कैसे पॉसिबल है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 14. तो वो जो 14 लोग एक्सेस आ रहे हैं ना, ये लोग इनके कॉमन एरिया में है, यानी ये 14 लोग वो लोग हैं जो योगा भी कर रहे हैं, जिम्नास्टिक भी कर रहे हैं. तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ओनली योगा कितने लोग कर रहे हैं, तो 26 माइनस 14 12. ओनली जिम्नास्टिक कितने कर रहे हैं, 28 माइनस 14 14. सो गाइस ओनली योगा 12, ओनली जिम्नास्टिक 14. How many students attend both yoga and gymnastic? 14. All right. So guys, इसको याद रखना. Only yoga 12, only gymnastic 14. Both yoga and gymnastic again 14. Answer is option number B. And with this, we come to an end of the discussion. Guys, there will be a workshop on Monday, so do not forget to join it. Thank you.